बस मुझे यही कहना है कि आईटी की जब शुरुआत हुई थी 25 साल, एवरीबडी आर मीटिंग नाउ सेइंग ओह माय गॉड 25 इयर्स, लगता नहीं था कि 25 साल निकल गए हैं, बट आई थिंक 25 इयर्स इज a quarter of a lifetime, literally, for all of us. And you guys have all supported us so much. I am very, very happy to say that we have been associated with Star Plus. We've done brilliantly. We started 25 years ago with them. Continued, I think, for 6-7 years we were with you. And now, once again, we are with Star Plus. I am not bragging, but we are the highest rated awards in the country. And we have beaten any other award we can. And it's because we've got this fantastic community of television stars and the world loves them. Everyone wants to see them, what they're doing, they treat them and they feel they're one of their own. And that is the reason ITA is where it is today. Even in the last 5 years, I think we have beaten most of the programs across GC networks and channels as the highest rated program on Indian television. Sorry. Okay guys, Star Plus is going to talk Shumanto. I will now zip my okay, and I don't want to say a lot more because I have Shumanto here with us and Shashi and Mahima, Shubhangi, Rohit, everybody sitting and talking. We're going to talk about it, and they've all been a part of IT from year one. So I would honestly now like to hand over the mic because I like to hear good things about myself. So for me talking a lot is not going to say. So please, I would like now you to invite. Absolutely, absolutely. So next, I would like to call upon stage Shumanto Bose ji, the head of cluster entertainment, Hindi Star Plus, Star Bharat, Star Utsav Awards. So it feels fantastic. I have a very bad throat, so I'm excused for that. It feels fantastic. I have not been associated for the last 25 years. We had been having an association for 2 years, but this 2 years seems like awesome, mind-blowing, and what Shashi and Anu had created together, I think is stupendous. Some stuff that I want to rattle off. It's the best award show, it's the best event that India witnesses. That's not an opinion. I'll back it out with some data. The first point is that every 31st night for the last 2 years, 40 million Indians ushers in the new year with ITA and Star Plus. That's 4 crore people sitting across homes all over India, ushering in New Year with ITA and Star Plus. 60 million hours is the watch time that happens in Star Plus and Jio Hotstar. Now these are 2 such big numbers, and I'm not getting into TVR and ratings. This is sure watch time and number of people tuning in to see this award ceremony. So this is the best event, this is the best award that both of you have created, which is we should be extremely proud of. 25 years is a fantastic milestone, and to wishing for another big 25 to come. Absolutely. Good evening everybody. Shumanto जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अंकिता, दीपक, लिंडा, स्टार से आए हुए बाकी सभी लोग, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे कलीग्स, जो भाई मेरा फ़ोन ले लो नहीं बजता रहेगा, जो ख़ास तौर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए हैं, महिमा चौधरी, शिवांगी, रोहित रॉय, मेरे दोस्त यहाँ पे और भी काफ़ी चेहरे हैं और कुछ लोग आएंगे. तो ये लोग सिर्फ मेहमान नहीं हैं, ये इस जर्नी की इसके सहभागी रहे हैं और कई लोग तो पहले साल से हैं. रोहित, महिमा, जबकि वो टेलीविजन में नहीं थी, वो फिल्मों में थी, लेकिन उनका साथ जो है हमारे साथ हमेशा रहा है, उनका मार्गदर्शन भी रहा है. और जब कभी भी ITA के अंदर कोई भी भूमिका निभानी होती है तो महिमा मेरे साथ हमेशा खड़ी होती है. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ महिमा, थैंक यू वेरी मच. एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। ये शेर जो है आई थिंक हमारी जर्नी का बिल्कुल सही एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटी सी कन्विक्शन से, एक मैडनेस से ये एक जर्नी शुरू हुई और आज वो एक जर्नी जो है इतना बड़ा रूप ले चुकी है। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, सभी इंडस्ट्री के लोगों का शुक्रगुजार हूँ और करोड़ों दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ जिनके साथ एक रिश्ता जो है ITA ने कायम किया है 25 साल में। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ कि ITA के फेसबुक पे इस वक्त 500 मिलियन लोग जो हैं वो देखते हैं, जो क्लिप्स और जो I just want to say one thing. हमारे top 10 जो reels of videos और clips जो हैं Facebook पे, they have a total view of over 2.8 billion views in 1 year, which is there totally. So 500 million views, an extraordinary 9.4 million interactions. ये मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ। So वो क्यों हुआ? क्योंकि ITA अवार्ड एक ऐसा इकलौता अवार्ड है जिसकी पॉपुलर वोटिंग जो है, बिग बॉस जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पॉपुलर प्रोग्राम है, लेकिन उसके भी जो इंटरेक्शन है वो इतना नहीं है। हमारा 2023 के अंदर जो वोट्स थे पॉपुलर के लिए, जो लोग वोट करते हैं देश से विदेशों से, वो कुछ 1,18,00,000 थे, 75। 2024 में वो 1,02 के करीब थे और इस साल 1,17,00,000 वोट्स ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास। तो ये दर्शाता है कि लोग जो हैं न सिर्फ इस प्रोग्राम को देखते हैं बल्कि पूरा थ्रू आउट द ईयर उनकी एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ITA क्या कर रहा है। एक बात जो हमें बहुत बिगिनिंग में सुननी पड़ती थी लोगों से, पंडित लोगों से, ज्ञानी लोगों से, कि भाई टेलीविजन के लोग तो बहुत छोटे हैं, छोटा भाई का कहलाता था ये छोटे पर्दा, और कहते थे कि ये जितने बड़े बड़े स्टार हैं, शाहरुख ये वो, उनके सामने तुम्हारे चेहरे जो हैं उनको कौन देखेगा, कौन क्या करेंगे ये लोग। और ये कहीं शंका हमें भी थी क्योंकि टेलीविजन उस टाइम नया नया शुरू हुआ था। हम नहीं जानते थे कि ये बेहतरीन डांसर भी हैं, ये बेहतरीन एक्टर तो थे ही, ये गाने भी गा सकते हैं, कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ हमारे ये ख्याल था कि करेंगे क्या। अगर हमने अवार्ड शो शुरू किया तो एंटरटेनमेंट हमारे होगा क्या, क्योंकि यहाँ तो शाहरुख डांस करते थे, फलाना डांस करते थे, ये करते थे और फिल्म स्टार्स थे, हम लोग क्या करेंगे। तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे याद है कि पहले साल हमने कुछ 1 घंटे का एक कॉमिक एक्ट किया जिसमें हमने पूरी टेलीविजन की जर्नी दिखाई, जिसमें हमारे बेहतरीन कलाकार उस वक्त के जो आज भी हैं, शेखर सुमन, मंदिरा बेदी, राकेश बेदी एंड सो ऑन सो फोर्थ, और बहुत कामयाब रहा। और हमारा ये विश्वास था कि हम फिल्म स्टार्स को बुलाएंगे, उनके हाथ से अवार्ड्स लोगों को दिलवाएंगे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं करेंगे। और उसका रीजन ये था कि अगर हम उसी प्लेटफॉर्म पे फिल्म स्टार्स को भी साथ में एंटरटेन करवाते तो इसकी जो वो खूबी थी, जो इसकी विशेषता थी, वो खो जाती, इसकी पहचान खो जाती। और मैं अपने ही कलाकारों को, अपने ही उन लोगों को जिनको मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा था, उनको शायद छोटा दिखाता कि ये इनके सामने बहुत छोटे हैं। और वो जो हमारी प्रतिज्ञा थी, जो हमारा विश्वास था, वो आज कामयाब हुआ है। क्योंकि जैसा कि शुमांतु जी ने बताया कि इतने सारे लोग वेट करते हैं इस प्रोग्राम को देखने की। मनीष आ जाओ, लेट हो तुम आप। तो वो विश्वास आज मुझे बहुत खुशी दे रहा है। उस वक्त शायद लोग शक करते थे, लेकिन अब वो इस बात की सराहना करते हैं कि यही एक इकलौता है प्लेटफॉर्म है जो अभी तक करप्ट नहीं हुआ है।
थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच शशि जी फॉर द काइंड वर्ड्स। और हाँ, ये बात है, जब मुझे काम नहीं मिल रहा था, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा था कि चलो ये भी कर सकता है, शशि जी ने डेफिनेटली मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया था। आई स्टिल रिमेंबर द शोज, आई स्टिल रिमेंबर रेड कार्पेट से शुरुआत करी बिकॉज मेन स्टेज पे ऑब्वियसली पॉपुलर फेसेस चाहिए थे, बट मुझे ये नहीं बात समझ आई, जब आप ही पॉपुलर नहीं बनाओगे तो फेस पॉपुलर बनेगा कैसे। तो आई थिंक थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट, बिकॉज आई थिंक टैलेंट मेरे में नहीं, बहुतों में है, बहुत लोग टैलेंटेड हैं, बट अगर वो टैलेंट को प्लेटफॉर्म ही ना मिले तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं। सो आई थिंक शशि जी, वी नीड मोर पीपल लाइक यू। हनुमान, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड आई थिंक इट्स अ बिग माइलस्टोन, कंप्लीटिंग 25 इयर्स। और 25 सालों में आई थिंक बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत बड़ा मौका मिला है, बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला है। बिकॉज चलिए काम भी मिल जाता है, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन रिकग्निशन ना मिले तो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट अधूरा फील करता है, फॉर श्योर। सो आई थिंक ITA हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रिकग्निशंस एज फार एज आई एम हियर इन होस्टिंग। आई थिंक मुझे याद है 10 अवार्ड्स मैं आपके जीत चुका हूँ सर। तो अब 11वें की तैयारी कर रहा हूँ। तो मतलब वो होता है ना कि आर्टिस्ट जो होता है ना, कभी हम ग्रीडी हंग्री आर्टिस्ट होते हैं, हमारा पेट नहीं भरता कि चलो 10 मिल गए, बंदा कहता है हो गया, हम लोग वही कहते हैं नहीं यार एक और आ जाए यार। सो आई थिंक बट वही एक आर्टिस्ट की पहचान भी है, बिकॉज वो भूख खत्म हो जाएगी तो आर्टिस्ट खत्म हो जाएगा। बट आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड हम लोग वहाँ पे खूब हंगामा करेंगे। एज वी सेड, इट्स अ फैमिली, इट्स वी नेवर टेक इट लाइक अ शो कि एक शो है, हम एक स्क्रिप्ट आएगी, हम पढ़ेंगे और चले जाएंगे। आई थिंक हमें बहुत से आइडियाज आते हैं और हम लोग कॉल करते रहते हैं, अच्छा सर ये कर लेंगे, भरत जी एक ये आइडिया आया ये कर लेंगे, यू नो जो भी को होस्ट होता है उसको फोन करते हैं कि अरे यार ये ना ये कर लेंगे। सो आई थिंक ये शो बिल्कुल घर का शो है, जैसे हम वैसे ही लेते हैं, हम लोग आते हैं खूब मजा करते हैं, पारिवारिक जैसे होता है ना। मैं वहाँ पे होस्टिंग एक्चुअली वैसे कर रहा होता जैसे बड़े से हॉल में अपने, मैं दिल्ली से आया तो हम तो ड्राइंग रूम में बैठ के और वहीं पे गप्पे मार लेते थे, हंस लेते थे और एक मजा क्रिएट करते थे। तो मैं अभी भी वही थॉट से जाता हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है, हॉल है, जहाँ पे पूरा परिवार आया है, उनसे बातें करेंगे, एंटरटेन करेंगे। सो वही करना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच शशि जी। आई नो बीच में 2 साल में गायब रहा, उसकी मुझे बहुत डांट पड़ी है, बहुत ज्यादा वाली, लेकिन इनको पूरा हक है और मैं डांट खा भी लेता हूँ इनसे। तो उन्होंने इस बार मुझे फिर से डांटा था और थोड़ा सा धमकाया भी था कि अगर तुम ना आया तो देखियो। बहुत पहले ही कह दिया था, डेट अपनी ब्लॉक कर लियो। और आज के लिए भी मैं था नहीं, बट इन्होंने धमकी दी, चुप करके पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। बट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप जितना एंजॉय हम लोग करते हैं आप लोग भी सारे करें। थैंक यू सो मच। मैं महिमा जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत दिन से मेरे दिल में आ रही थी, बुरा मत मानिएगा। ओबला डी, ओबला टा, ओबला टू, हम लोग बात कर रहे थे, महिमा जब यहाँ बैठ के बात कर रही थी, उसका warm welcome to the members of the press. Thank you for being here. Before I start about the idea, because I can go on as long as Shashi ji, because I've been involved as long as Shashi ji. Ritu, as we know you, we are the biggest fans. Both of us were just looking at while you were talking, and things haven't changed. She's the OG host. We came later. She's the one. So huge round of applause for Mahima Chaudhary. मेरा 25 years बहुत ही लंबी जर्नी होती है किसी भी चीज के लिए। मुझे आज भी याद है जब पहला अवार्ड फंक्शन हुआ था 2000 में, रेनेसां पवई करके एक होटल है और वहां पे एक बैंक्वेट हॉल में ये अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया था। स्क्रिप्ट लास्ट मिनट पे आती थी, हम लोग पढ़ रहे थे, बाहर बैठ के कॉफी पी रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और शो हुआ। खुशी इस बात की है कि पहला जो फर्स्ट ITA अवार्ड्स हुआ था वो मैंने होस्ट किया था और अब मनीष के साथ 25वां होस्ट करूंगा। मनीष के साथ, मनीष के लिए जो मैं बोलता हूँ, एक बार इनके लिए ताली बजाइए जिन्होंने आके रेड कारपेट के साथ साथ सारे कारपेट ले लिए। और मैंने अभी मुझे पता चला है कि ये शशि जी ये क्या है यार, आई वॉज योर फेवरेट, हाउ कुड ही बिकम वेरी बैड। सो यू नो माई जर्नी विद हिम हैज बीन रियली लॉन्ग। वन थिंग दैट आई मस्ट से, फिल्म इंडस्ट्री होती थी, टेलीविजन इंडस्ट्री नहीं थी। हम टीवी एक्टर हैं, क्या करते हो, टीवी करते हैं। कभी टेलीविजन को इंडस्ट्री नहीं माना गया, कभी टेलीविजन के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मेरा पहला शो मुझे याद है 95 में लॉन्च हुआ था। पहले 5 साल मुझे बहुत सारा एडुलेशन मिला, लेकिन एक्युलेट्स नहीं मिले।
और जैसे इसने कहा कि अधूरा लगता था कि यार हम लोग हर घर में जा रहे हैं, लोगों का प्यार पा रहे हैं। एक इवेंट में मैं गया था जहां पे राजीव खंडेलवाल नाम का एक एक्टर था और एक फिल्म एक्टर थे। उन फिल्म एक्टरों के लिए उतनी तालियां नहीं बजी थी जितनी राजीव के लिए बजी थी, फिर भी अवार्ड नहीं थे। और फिर 2000 में ITA के आने से हमें वो पेडिस्टल मिला। तब तक हमें सिर्फ कैरेक्टर नेम से जाना जाता था, अरे ऋषभ मल्होत्रा। लेकिन ITA अवार्ड्स के बाद हमारा नाम घर घर तक पहुंचा। मुझे याद है कि रोंगटे खड़े हो जाते थे जब वो अनाउंस करते थे, एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन वी हैड एक्सपीरियंस दैट फीलिंग, दैट हाई. I don't think that's going to come back again, at least for someone like me who had spent so many years before that. And yeah, Mahima, you're right. It's really transparent. I was a big star on television. I was very close to Ani and Shashi. Shashi ji को मैं अभी भी Shashi ji बोलता हूँ. लेकिन एक ही बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है मुझे 25 सालों में. And I think I was very deserving. And what else can I say? It's just been a great journey. They've given a great platform to everybody, taken people there. 25 years is no mean feat, so congratulations. Firstly, congratulations on the ITA. Congratulations. I will never be able to call it ITA. Somehow, I just Indian Television Academy Awards. 2025, 25th silver anniversary. Huge round of applause for the entire team. Anuj ji, Shashi ji and the team. Congratulations and all the very best. And I want to be here for the 50th. I'm also going to sit and watch. I guess it comes from television because ITA is all about television. That's how it started. Congratulations. उस टाइम पे I think कोई और है नहीं जो television industry को वो recognition देता था. I'm so happy you've come such a long way. You included films. हाँ, मैं हमेशा जुड़ी रही हूँ और मैंने मनीष आपकी तरह होस्ट भी किया है, पर आज तक मुझे नॉमिनेशन भी नहीं मिला, तो ये इस बात को दिखाता है कि ये लोग कितने ट्रांसपेरेंट हैं। हर अवार्ड में पहुंच जाती हूँ, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहुंच गए। मेरी नीयत ठीक नहीं है, बट इनकी नीयत ठीक है। So that speaks volumes and कुछ साल पहले obviously OTT ने इतनी धूम मचाई, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो OTT भी इंक्लूड हो गया। And it is one award that everybody aspires to have, and because OTT is so large, I want to congratulate you on the thought that you're thinking of having an entire new award for just the OTT, because it's difficult to accommodate in one night, in one award ceremony, so much talent. So there'll be a special OTT awards of ITA, and I want to wish you all the best for that journey forward. And Anu and Shashi, thank you for always treating me like family and including me. Thank you so much. Everyone, and thank you Anuji, Shashi ji for inviting me for this 25th ITA press conference. My God, it's a very nostalgic moment for me because ITA and Star Plus. I started my career with Star Plus, and जो फर्स्ट कैरेक्टर था कस्तूरी, उसके लिए मैं डेब्यू के लिए नॉमिनेट हुई थी एट आइटा, सो दोनों ही साथ में हैं, सो आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक टुडे। और जहाँ तक आइटा मेरी फैमिली है और इसका सवाल है, तो ये फैमिली, ये जो रिश्ता है, ये बहुत मजबूत हुआ। तो एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। इंदौर में आइटा अवार्ड्स होने जा रहा था और मैं चूँकि इंदौर से हूँ, तो जब आइटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ कई सारे टीवी एक्टर्स को, प्रेस को, सबको पहुँचना था। लेकिन उस दिन मुंबई में इतना भयंकर ट्रैफिक जैम था, गोरेगांव से लेके सैंटा क्रूज तक पूरा जैम था, कोई भी एक्टर, कोई भी नहीं पहुँच पाया, बट मैं पहुँच गई थी क्योंकि मेरे कैब वाले ने मुझे एक बाइक वाले को रुका के बोला कि आप प्लीज मैम को एयरपोर्ट ले जाइए, इनका बहुत अर्जेंट कुछ काम है। और ये मेरी शुरू से आदत है, अगर मैं किसी चीज़ को शुरू करती हूँ ना, मैं उसको डेस्टिनेशन तक जरूर लेके जाती हूँ। सो उस दिन फिर मैंने बाइक पर मतलब उससे लिफ्ट ली, और थैंकफुली वो जो बाइक पे जो थे जेंटलमैन, वो एयरपोर्ट पे ही काम करने वाले थे। अब आप सहयोग देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि वो सीधे मुझे एयरपोर्ट लेके गए, और बिल्कुल जब इंडिगो का डोर बंद हो रहा था और मैं पहुंची, और आइटा परफॉर्मेंस मतलब आइटा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहाँ अकेली एक्टर पहुंची थी, और तब शशि जी ने कहा था हमारी शेरनी आ गई। सो ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। सो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपको, और मैं चाहती हूँ कि मैं 50th
जो हमारा आईटा अवार्ड्स होंगे उसमें भी मैं यहाँ रहूंगी. आई विल कीप एंटरटेनिंग एंड आई प्रॉमिस यू. और जहाँ तक आप दोनों का सवाल है, अगर होस्टिंग में कोई जरूरत पड़े तो मैं मनीष, शशि जी. So thank you so much for having me here. And Arun ji, Shashi ji, ऐसे ही पकड़े हैं. आप जैसे ही कपड़े मैं भी पहनता हूँ और आप में से बहुत मेरे साथ सालों साल रहे हैं. शुक्रिया. इस जर्नी में आप भी मुझे मिलते रहे. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अंकिता, लिंडा, आप लोगों का सहयोग मुझे क्रिएटिवली, और दीपक, ऑफ कोर्स दीपक से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होते हैं मेरे, लेकिन you people are actually, you know, real help to me because सालों साल अगर हम इसको और अच्छा बना पाए हैं तो उसमें आप लोगों का योगदान है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया स्टार प्लस. बहुत बहुत शुक्रिया टेलीविजन इंडस्ट्री और मेरे खास दोस्त. इनके बिना इस शहर के अंदर शाहरुख नहीं है. और आप जोर से बोलिए इनका नाम क्या है? अगर आपको इस शहर में अपना चेहरा पोस्टर्स पे देखना है तो इसके बिना नहीं हो सकता है. सबकी पहली पिक्चर का पहला पोस्टर इन्होंने ही लगाया है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका है. थैंक यू. And before we sign off, I'd like to thank Shamanto, please, for all your support and for being with us. Thank you so much and your belief in us. Thank you. Can you tell us what is the defining moment of ITA and how it is going every year growing? So this is another part of ITA family. Kiku, please sit down. And आपने देखा होगा कि shows में तो नहीं, but he's also part of the family. Whenever there is an opportunity, we always think of him. And yes, so defining moment ITA के अंदर तो हर साल एक नया moment, एक नया milestone हमारे सामने होता है. और हर साल यही कोशिश होती है कि पिछले साल से कुछ बेहतर या कुछ ज्यादा. तो किसी एक पर्टिकुलर साल को ऐसे कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. लेकिन हाँ, जनता को होता है, कईयों को कोई सा शो बहुत अच्छा लगता है. हमारे लिए तो मेहनत और जो भी चीज़ है वो उतनी लगती है जितना हर शो में लगता है. तो OTT प्लेटफॉर्म्स आने के बाद ऐसा कुछ चेंजेस आया है IT में, कैसे आपने अडैप्ट किया है तो इसमें भी OTT में भी हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म थे जिसने OTT को प्राथमिकता देनी शुरू की. लेकिन अब OTT जैसा आप जानते हैं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है और मुश्किल है कि एक ही रात में इतना बड़ा टेलीविजन, इतना बड़ा OTT एक साथ वो सबके साथ एक वो किया जाए. तो हम कोशिश करेंगे अगले साल से OTT के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करें. Shashi ji, hi this side. कमिश्नर फ्रॉम बॉलीवुड. 25 सालों में टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हुई है along with the coming changes. तो आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू, जैसा आप ऑब्जर्व करते हैं कितना चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू योर ITA, कितना उसके साथ चेंज हुआ? सो ITA तो प्लेटफॉर्म है टैलेंट का. जितना बेहतर प्लेटफॉर्म आता है ITA उतना बेहतर होता जा रहा है. आपने देखा कि टैलेंट कितना पॉपुलर और बेहतर होता जा रहा है. जहाँ तक संबंध है प्रोग्रामिंग का, सो मुझे लगता है प्रोग्रामिंग में अभी भी हमें, क्योंकि बेसिकली इट्स राइटर्स मीडियम, तो राइटिंग के अंदर भी हमें काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए. प्लेटफॉर्म्स को भी नई कहानियाँ, नई तरह के सब्जेक्ट्स को सामने लाने को, उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए. क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म ये चिंता नहीं दिखाएगा कि मीटू शोज नहीं बने, डिफरेंट शोज बने, तब तक जो है एक नई क्रांति, एक नई चीज़ जो है आना बहुत मुश्किल होता है. तो ये दोनों तरफ से है. और चूंकि इनके साथ कुछ बहुत बेहतरीन एक्टर आए हैं डिफरेंट प्रोग्राम के साथ, तो वो ITA पे आते हैं, जाहिर है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को अवार्ड मिलता है, तो उसके साथ ITA भी ग्रो करता है पॉपुलैरिटी में. जैसा आपने कहा डिफरेंट एक्टर्स हैं, तो आगे भी कई लोग जुड़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, तो उन लोगों के लिए क्या
एक्साइटिंग आगे फ्यूचर में ITA बोर्ड ही करता है एजुकेशन? ITA कोशिश करता है कि हर साल सारी इंडस्ट्री एक छत के नीचे लाए और जो उस साल का बेहतरीन काम है, जो बेहतरीन लोग हैं, उनको नवाजा जाए, उनका सम्मान किया जाए, उनको इज्जत बख्शी जाए, उनको फोकस दिया जाए और वही जो है आगे के आने वाले टैलेंट के लिए एक जो है वो बन जाता है, माइलस्टोन बन जाता है. So and so got the best actor award, so and so got the best comedian, so and so got the. So now I should be looking at that. So it becomes, inspiration for the generations to come. Sir, over here, sir. So Shahid from INS. सर मेरा सवाल ये है कि रिसेंटली टीवी एक्टर्स ने कहा था कि मतलब कि टीवी टेलीविजन एक्टर्स के लिए भी नेशनल अवार्ड होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो हमारे देश के अंदर इस इंडस्ट्री को जितना भी फोकस मिले वो बहुत अच्छा है, मुझे खुशी होगी. Missed you at the start of the conference. My apologies for committing so Not late. at all, we missed you, but you're right here. You have been an integral part of ITA, and ITA is something in the industry, in the television industry, is like a Oscar, which could be, for many who have embarked their journey with this. What has been your experience and your opinion in terms of how they've uplifted and changed the TV fraternity? Idealism, and it's on a new platform and a pedestal. Well, first of all, big congratulations to you, sir. 25 years of ITA, बहुत ही कमाल की बात है. And nobody has celebrated television the way ITA has. It's over the years what sir also was talking about. Even I feel, मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप सेलिब्रेट करते जाते हैं, हर साल आप सर्टेन कैटेगरीज में आप जो अवार्ड्स दे रहे हैं, then everybody tries to excel. They know that the ITA is so very important. They want to win awards. They try and kind of go a level up. तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है जो आज 25 साल पूरे हुए हैं. और मेरे ख्याल से टेलीविजन को स्पेसिफिकली कोई इस तरह सेलिब्रेट नहीं करता जिस तरह ITA करता है. और इसमें एक तरीके से सारे कलाकार एक छत के नीचे आते तो हैं ही, लेकिन उसी के साथ साथ सबके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन रहता है इन टर्म्स ऑफ शोज, जो एक से बेहतर एक करना चाहते हैं. बिकॉज अवार्ड्स कौन नहीं जीतना चाहता भाई? एवरीबडी वांट्स टू काइंड ऑफ get some award in their life. So the contribution of ITA has been huge. It has been humongous over the last 25 years, and I just pray that it keeps growing and becoming bigger and bigger and bigger. Kiku ji and Shashi ji, to both of you. Sir, it's been 25 years, the award is growing, but apart from that, the new generation, the Gen Z is expecting more genres, like there is K-drama, there is artificial intelligence taking over. How do you think that the television industry is keeping hold on its audience, its viewers, and how the awards will be a big contribution in this? So you two things you've said. One is about artificial intelligence. तो जहाँ तक artificial intelligence का सवाल है, ये एक ही जगह फ्लॉप होती है जहाँ टैलेंट है, क्योंकि artificial intelligence टैलेंट नहीं पैदा कर सकता. तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है हमारी कि जितना टैलेंट होगा उसको AI नहीं बिगाड़ सकता. So AI is a science. It's a technology which is going to come. You cannot stop the technology. But I don't think so in terms of creativity. AI has much to do. But yes, it will add something to the present bouquet, and it should, because every technology is here to help us. So I'm sure the look and feel of the programs, technical aspect of the programs will be much better with AI, but still we need pure good talent that is irreplaceable. Second part, how ITA will function in that. So ITA is a platform, it's a bouquet where हर तरह का टैलेंट, हर तरह का जो क्रिएटिव आदमी हैं उसको हम इस प्लेटफॉर्म पे
अवार्ड देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको फोकस देते हैं, वो हम करते रहेंगे इन अ मच बिगर वे, मच बेटर वे. सो दैट्स वेयर ITA's भूमिका इज. थैंक यू. सर, माय नेम इज यश फ्रॉम वीडियो. आप लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टीवी शो को ITA अवार्ड्स में 25 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. मेरा सवाल आप लोगों से ये रहने वाला है कि ITA जो है वो इंडियन टेलीविजन अवार्ड है, लेकिन हमारे जो इंडियन टेलीविजन शोज है वो फॉरेन कंट्रीज में भी देखे जाते हैं, जैसे अमेरिका का है या और भी जो फॉरेन कंट्रीज है. तो वहाँ के लोगों के लिए आपने कभी कुछ सोचा जो वहाँ पे जो अपने शोज देखते हैं उनके लिए कुछ प्लान किया है? चलिए, अच्छा सवाल है, मैं भी जानना चाहूँगा सर आपसे. तो आपने अपने ही सवाल में अपना जवाब दे दिया. आपने कहा कि वो लोग सब यही प्रोग्राम देखते हैं. तो ये प्रोग्राम यहाँ के लिए नहीं है, वहाँ के लिए, बल्कि आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि मैं अमेरिका या कहीं भी विदेश में जब जाता हूँ तो वहाँ पर ज़्यादा लोग उत्सुक हैं. ये आर्टिस्ट कीकू जैसे अगर अमेरिका और लंदन उधर जाते हैं तो और ज़्यादा भीड़ जुटती है, बिकॉज वो 24 घंटे यही प्रोग्राम देखते हैं. बल्कि कई बार मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है कि मैं बहुत कम टेलीविजन शोज देख पाता हूँ, तो मुझे बोले, अरे सर वो आपने देखा था पुराने शो का वो एपिसोड, कमाल का था ना, उसमें आपका अवार्ड देते हो आपने, तो आपको तो माने नहीं होगा. तो यस, सो ऑडियंस जो है बाहर ज्यादा उत्सुक है हमारे एक्टर्स के बारे में, और उसके अंदर ITA और स्टार+ की भूमिका एक बहुत अहम ये है कि ये प्रोग्राम जो है हमारा वो नियरली 260 कंट्रीज में जाता है. और जैसा कि आपने अभी सुना कि हाईएस्ट व्यूइंग है इसकी, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर भी. जो ITA अवार्ड है वो किसी भी अवार्ड से ज्यादा लोग मुझे आके कहते हैं आपका वो भी देखा था, वो भी देखा था, वो भी देखा था. तो आई एम हैप्पी, या सो इट इज रीचिंग एवरीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया. And in a lot of foreign countries, most of the time, people, मतलब आप देखिए वहाँ पे generations जो बच्चे वहीं पे पैदा हो रहे हैं, उनका लिंक विथ इंडिया इज आइदर फिल्म्स और टेलीविजन. वो भाषा टेलीविजन से ही सीख रहे हैं, वो यही शोज देख रहे हैं. उनको जितनी जानकारी अपने देश की, जितना वो आते रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जितना वो जानते हैं, a lot of people I've seen their language also comes with the words that are used on Indian film or television. मतलब मैं एक खाली ऐसे ही कि मेरा बेटा एक बार कोई एग्जाम दे रहा था हिंदी का अपने स्कूल में, तो वो अपने भाई से वो थोड़ा सा कंफ्यूज था किसी चीज को लेके, तो बोला कि मैं ना फ्रेमिंग सेंटेंसेस हिंदी में जरा मुझे लैंग्वेज अच्छी हैवी यूज करनी है जब मैं हिंदी लिखता हूँ, एग्जाम में लिखता हूँ कुछ. तो मेरा बड़ा बेटा उसे कह रहा है कि तू एक काम कर, तू ना सिर्फ तू बाहुबली सोच, तू बाहुबली की लैंग्वेज फिल्म में जो यूज की है ना, तो वो डायलॉग सोचेगा, यू विल गेट द वर्ड्स दैट यू नीड टू यूज. सो दैट इज द काइंड ऑफ रेफरेंस पीपल आर यूजिंग. मतलब इट्स जस्ट द फिल्म्स एंड टेलीविजन. हियर वी आर डिस्कसिंग टेलीविजन. तो टेलीविजन इज सो प्रोमिनेंट. मतलब जैसे ये कह रहे थे, ये सच है. मुझसे भी कितनी बार फॉरेन कंट्रीज में लोग जानना चाहते हैं कि आप, एज इफ आई नो ऑल द एक्टर्स ऑफ टेलीविजन. मैं नहीं जानता सबको. मतलब there are a lot of new kids on the block जो, I mean, I probably don't know them so well, but everyone thinks that we are like कि आप तो ये वो शोज का इतना डिस्कस किया जाता है, और नेक्स्ट ट्रैक जो होने वाला है हमसे अब फ्यूचर भी पूछा जाता है कि आपको ये शो के बारे में पता है, ये जब मर जाएगा उसके बाद क्या होगा. मतलब मुझे नहीं पता भाई, वो जो शो बना रहे हैं उनको जानकारी होगी. बट या पीपल लव इंडियन टेलीविजन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो और उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है, एंड उनको ऑनर किया जा रहा है, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है विद ITA. इससे बेहतर और क्या हो सकता है. सर, बात की जाए ओल्ड शोज जो होते हैं, जो पहले जो शोज बनते थे, उन्होंने बहुत सारी हिस्ट्रीज क्रिएट कर रखी है हमारे इंडियन टेलीविजन में. कुछ शो को 18 साल हो गए, कुछ 5 साल हो गए, कुछ शो को किसी के 5000 एपिसोड पूरे हो गए. लेकिन जो आजकल के टाइम पे न्यू शोज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं TRP के कारण नीचे गिरते जा रहे हैं. बट कहीं ना कहीं वो शोज का TRP कम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. वो शोज जो आजकल OTT पे देखे जा रहे हैं. तो सर, आप लोगों ने कभी इसके बारे में कोई सोल्यूशन देखा है? क्योंकि शो जो है वो सिर्फ OTT पे भी देखा जा रहा है, तो उसकी भी जो डेटा आएगा तो उसको कहीं ना कहीं ऐड करना चाहिए TRP में. इसकी जानकारी तो सर. सो व्यूअरशिप फ्रैगमेंट होती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है. आपके पास मोबाइल कंटेंट है, आपके पास OTT है, टेलीविजन है, फिल्म्स हैं, और भी आपके पास कई तरह की चीज़ें हैं. तो स्पैन ऑफ अटेंशन जो है व्यूअर की बहुत कम होती जा रही है. किसी भी कहा किसी ज़माने में 35 की TRP होती, हमने देखा है उस ज़माने में 35 की TRP है, 30 की TRP होती थी, फिर वो 15-20 पे आई, तो वो घटते घटते अभी वो अगर आप 3 कर लें तो बहुत बड़ी बात है. सो फ्रेगमेंटेशन है व्यूअरशिप में, वो रहेगी.
उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जिसको जो पसंद है वो उस मीडियम पे जाएगा। जहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का सवाल है कि कई प्रोग्राम बहुत जल्दी चले जाते हैं, कई सालों साल टिके रहते हैं, तो टेलीविजन व्यूइंग हैबिट भी है। और एक बार लोग जनता को जो प्रोग्राम, जैसे आज ही ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 5000 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं, बहुत बड़ा ये एक माइलस्टोन है। तो जो प्रोग्राम्स में कुछ कहानी अच्छी होती है, जिसके पात्र लोगों को पसंद आ जाते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देख लीजिए, ये इट्स ए हैबिट फॉर्मेशन। कुछ भी हो जाए, रामायण थी, महाभारत थी, वो हैबिट फॉर्मेशन थी कि आपको उस वक्त वो देखना ही है। आप क्योंकि फ्रेगमेंटेशन है तो टीआरपी कम है, लेकिन स्टिल टेलीविजन इज अ हैबिट। 25th ITA Awards. I mean, I'm so happy that I'm a part of this. And this is my second ITA. And I feel like a baby over here. But I really want to grow here. And actually, it's very lucky for me. जैसे ही मैंने ITA Awards last year किया था, उसके बाद में मेरी रेड कार्पेट की लाइन लग गई है. So I would like to tell sir, thank you so much. And thank you Anu ma'am also. And 25 years बहुत लंबे होते हैं. और इस जर्नी में आपने पता नहीं क्या क्या देखा होगा सर, इतना कुछ बनते हुए देखा है। एंड आई एम जस्ट वेरी लकी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। अमर जी, पिछले कुछ 17-18 साल से आईटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज क्रिएटिव हेड, और शायद ये ही डिफाइन कर सकता है कि आईटी जो है वो एक फैमिली ही है, क्योंकि एक बार जो जुड़ जाता है वापस जाता नहीं है। और हमने टेलीविजन का सर तो खैर बहुत पहले से देख रहे हैं, वो दौर भी देखा है जब सर ने डिस्कस किया कि 12-15 टीआरपी के शोज होते थे। आज रेटिंग्स उतनी नहीं है, पर मुझे लगता नहीं कि टीवी की फॉलोइंग कम हो गई है, क्योंकि आपको ये हो गया है कि लोग यहाँ किसी ने मेंशन भी किया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाकर शोज देखने लगे हैं, जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कम हो गई है। लेकिन टेलीविजन का क्रेज आपके सामने नंबर्स रखे गए कि आईटी अवार्ड्स 4 करोड़ लोग बैठ के देखते हैं 31 की शाम को, तो ये इसकी पॉपुलैरिटी है। और मुझे लगता है कि टीवी कहीं नहीं जा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा डाउट है मन में कि टेलीविजन की व्यूइंग कम हो रही है तो जल्दी बदल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टीवी अभी भी एक ऐसा मीडियम है जो फैमिली साथ बैठ के देखती है। मोबाइल में सब अलग भले कुछ भी देख लें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमने बहुत सारे शोज क्रिएट किए इससे पहले। किकोर में कपिल का शो हमने 10 साल किया साथ में, वो शो सभी होते सब बैठ के साथ में देखते थे। ये रिश्ता चल रहा है 15 साल से, तारक मेहता चल रहा है 15 साल से, 18 साल से। तो जो चीज़ें चल रही है वो अभी भी उतनी ही पॉपुलर है। मुझे लगता है कि उनकी व्यूअरशिप में जा रही है। बस ये है कि हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि चलो बाद में देखेंगे, रात को देखेंगे, मोबाइल पे देखेंगे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। बट 25 years of ITA, अगेन अ बिग माइलस्टोन। मुझे लगता है सर कि और कोई अवार्ड शो टेलीविजन में वर्ल्ड में इतना लंबे टाइम तक इतनी सक्सेसफुली चला है। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू अनुजी। कहना चाहेंगे? माहिर। Absolutely. So firstly, thank you so much for having me. It's been a pleasure. और 25 years of ITA, बहुत ही rightly said, from the OG host to the people जिन्होंने actually television में टेलीनाम बनाया, A1 से जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, to the people who televised it, it's a journey. और इस जर्नी में from the people who started 25 years ago to the people who are going to now take it forward, people like me, the newer generation, ये एक्चुअली में कल्चर है, फैमिली है, ट्रेडिशन है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, जो इंडियंस हैं, जैसे टीकू भाई ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, हम कल्चर को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आगे ले जा पा रहे हैं। जो लोग बाहर इंडिया के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मानते हैं बिकॉज ऑफ टेलीविजन। आई बिन ब्लेस्ड कि हमने ऐसे शोज किए जिसकी वजह से हम बाहर जा रहे हैं, लोग चाहे हमारा नाम नहीं जानते, बट जब होते ना, अरे वो कैरेक्टर है, हमारे लिए वो अचीवमेंट है। एंड उस अचीवमेंट को, उस कनेक्शन को, उस प्यार को जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आई डोंट थिंक एक आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ी कोई बात होती है। दैट्स ITA for you, 25 years of ITA, it's brilliant.